figure. So I'm going to start with this topic, surface area and volume. And surface and area and volume, बच्चे अगर आपको याद हो तो you have already done this topic in 9th class. Okay, but what is the difference between 9th and 10th? वो आपको बताने जा रहा हूं. In 10th class we will deal with combined figure. Okay, किन के साथ डील करेंगे हम? कंबाइंड फिगर के साथ. देखिए कैसे. जनरली we know this kind of cuboid, okay, then cone, which is also called right circular cone, then cylinder, okay, then sphere, okay, and at the last हेमिस्फीयर. ओके, क्यूबॉइड, क्यूब में एक और चीज होती है बच्चे विच इज कॉल्ड क्यूबॉइड. तो वो आप सब जानते हैं व्हाट इज दैट क्यूबॉइड. ओके, तो दीज आर 3D फिगर्स which will be combined in our 10th class. And how they will be combined, जरा चेक कीजिए. देखिए आप, if you see that, आप देख रहे होंगे बच्चे क्यूबॉइड के ऊपर क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर रखा हुआ है. ठीक, ये मैंने कुछ इमेजेस ली थी लाइक दिस. ठीक, एक क्यूबॉइड के ऊपर क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर. उसको हटा के दिखाया गया है कि व्हाट इज गोइंग ऑन. नीचे क्यूबॉइड है या क्यूब है, उसके ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और या हमारे पास क्या आता है? यू विल चेक दैट कि अगर हम इसमें जाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लाइक दिस वन. कि हमने कोन के ऊपर क्या बना रखा है? एक हेमिस्फीयर है. या अगर आप सेकंड में जाएं तो हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है? कोन है. तो दीज आर द कंबाइंड फिगर. एंड इन बोथ द पार्ट, or I can say in whole chapter, we will discuss the surface area and volume of this kind of combined figure. Okay, तो वो combined figure किसी भी type में हो सकती है. Now, before I start, we will just remind the formulas which we have already done. Now, if you see this figure, first curved surface area, then total surface area, and at the last volume. चलिए अगर मैं वॉल्यूम को फॉर द टाइमिंग छोड़ भी दूं तो वी विल डिस्कस कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. नाउ यू विल चेक इट. द कर्व्ड सरफेस एरिया, इफ दिस इज L, this is B, and this is H. So we call it 2 times of BH plus LH. Now total surface area, 2 times of LB, BH, and LH. Okay, now if you see that this is R, this is H, and this is L. Okay, so what we can say, curved surface area of cone is known as pi RL. And for total surface area, the lower part of the circle is also added to it. So we will got pi R square plus pi RL. Or in combined way, you can say
pi r plus L. This is the total surface area of the cone. Okay. Now, if I come to cylinder, so you know that in cylinder we have two parameters. One is called radius and another is called height. बच्चे मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा कि हाउ वी विल गेट दैट, ये हमने 9th में कर लिया. जस्ट वी आर रिमाइंडिंग आवरसेल्फ द फार्मूलाज. ओके, तो वो हम उसमें कर रहे हैं. तो हियर इज कर्व्ड सरफेस एरिया. Curved surface area is known as 2 pi RH, and when we add both the circles upper and lower, so it becomes total surface area. That means 2 pi r square हमने इसमें add किया and we got this one. Or in the combined way, I can say, I can write it as 2 pi r plus h. Now you must know the difference between curved surface area and total surface area. Okay, curved means when we are sitting in the room, so except floor and ceiling, जो 4 walls हैं, that is called curved surface area. और अगर हम ceiling, floor और ceiling को add कर ले तो that becomes a total surface area. Okay, now come to the next one, is our sphere. स्फीयर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चे कि इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये टोटली कर्व्ड होता है, एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम. तो वी विल राइट इट एज 4 pi r. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, which we are going to perform the hemisphere. बच्चे हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि जब हम कोन के एरिया को, सॉरी स्फीयर के एरिया को क्या करते, इस तरह से क्या कर लेते हैं, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो दैट बिकम्स अ हेमिस्फीयर. देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि व्हेन यू डील विद दिस वन, तो ये तो कर्व्ड हो गया, कर्व्ड मतलब टोटल का हाफ, इट बिकम्स 2 pi r square. बट जैसे आप एप्पल को कट करते हैं तो एक नया सरफेस जनरेट हो जाता है मिडल में से, दैट सरफेस इज कॉल्ड सर्कल. तो जब आप इसमें ऐड करते हैं बच्चे इस सर्कल को, तो इट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 pi r square. और अगर हम सिर्फ बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो दैट इज इक्वल टू 2 pi r square. दिस पार्ट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड इफ वी ऐड दिस सर्कल into it, so that is called total surface area. तो before I start with the topic, तो आपको इन चीजों को क्या रखना है, पूरे ध्यान में रखना है कि what is going on for this particular chapter. Got it? आगे चलते हैं बच्चे. एक और आपके क्वेश्चन दिया हुआ है इन योर बुक, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा. दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम. व्हाट डू वी मीन बाय फ्रस्टम? देखिए क्या होता है कि व्हेन वी कट द कोन इनटू 2 पार्ट्स एंड रिमूव दिस पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम. ओके, क्या बोल रहे हैं हम इसको? फ्रस्टम बोलते हैं बच्चे. बट फॉर दिस ईयर इट विल नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ठीक है, हाँ, अगर आपने करना होगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू लेटर ऑन. ठीक, आफ्टर दिस टॉपिक. तो ये भी हमारे पास फ्रस्टम की क्या हो जाती है, डेफिनेशन. तो आई एम सिंपली स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, एंड बिफोर वी प्रोसीड आपको हर एक टाइप का फार्मूला क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि व्हाट वी कैन से इन दिस पार्ट. अब आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुकलेट, which is given to me as example 1.
ओके, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? आप देख सकते हैं बच्चे, आपकी बुक का पेज नंबर है 241. One lattu of this kind, in local language lattu, or we can say a playing top. A playing top of this kind is given to you. Okay, as a birthday gift, and you will see that it is a combination of two figure. First, the lower one is called cone, and the second one is known as hemisphere, and they are combined in this. He said the total height of this toy is 5 centimeter, and diameter of this one is 3.5 centimeter. Okay, and he is asking us, the top is shaped like the cone surmounted by a hemisphere. The find the area he has to color. Now we want to color this toy. Now for that we want to know what is the area. तो एरिया बच्चे मतलब क्या हुआ इसमें कि वी वांट टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर. अब मैं आपको एक थोड़ा सा और बताता हूं बच्चे. व्हेन वी कंबाइंड टू फिगर्स, तो ये बीच में कुछ नहीं होता. ओके, तो फॉर दिस पर्पस हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. ओके, and the curved surface area of the hemisphere is known as 2 pi r square in formula, and the curved surface area of the cone, which is known as pi r and l. And what I can do, I will take pi and r common, and here we got 2r plus l. Now question comes in our mind कि for this cone we know that the radius is 3.5 by 2, and for hemisphere the same radius will be applicable. Now for cone, check my point, this side 5 में से बच्चे कितना माइनस, 5 में से क्या माइनस कीजिए 1.75. तो 5 में से जब आप 1.75 माइनस करेंगे तो यू विल गेट, चेक कर लीजिए. देखो क्यों, बिकॉज ये वाली जो आपको दी गई थी ये 3.5 by 2 दी गई थी, एंड टोटल क्या था आपके पास, दिस वन. नाउ फॉर दैट जब हम इनको 5 and 1.75 करेंगे तो इट बिकम्स 3.25. चेक कर रहे हो बच्चे. एक चीज आपके पास अभी और एडवेंचरस बाकी है. फॉर रेडियस यू कैन सिंपली राइट इट एज 3.5 by 2. ठीक, रेडियस ऑफ द कोन as well as the hemisphere, and h, the height of the cone, is 3.25. But what one thing left in our question is the slant height of the cone. तो फिर उसके लिए बच्चे हम एक नई चीज कर रहे हैं जो आपने शायद सीखी भी होगी. We will move to this right angle triangle, and in this right angle triangle this is L, and L can be found out with the help of Pythagoras theorem. And Pythagoras theorem say 3.25 whole square plus 1.75 whole square. तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है टू क्रैक दैट वन कि हमारे पास ये वैल्यू किस तरह से लिखी जाए. ओके, बट वी कैन फाइंड आउट इन अप्रोक्सीमेट वे, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर लेते, फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करने का मेरा मीनिंग ये है बच्चे
कि we will calculate this formation देखिए जैसे मैं यहां पे करूंगा 3.25 multiplied by 3.25 तो we got 10.56 only 2 digit ज्यादा नहीं जाना only 2 digit okay then 1.75 into 1.75 so we got 3.06 okay in the combined order it will be written as 13.62 और अब देखिए इसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको आना भी चाहिए 3 and 3 it becomes 9 4 6 2 डेसिमल आ जाएगा बच्चे एंड डबल ऑफ 3 इज 6 तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे आइदर वी कैन राइट 6 7 8 9 और 10 कुछ भी जो आप इसमें लिखना चाहे ठीक है तो आप उसमें मेंशन कीजिए तो व्हाट यू विल गेट 7 करेंगे तो 7 एंड अप्रोक्सीमेट आ जाए तो इन दिस केस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ L विच इज इक्वल टू 3.7 और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है फॉर दिस अच्छा एक चीज और नोटिस करनी है व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आपने देखना है वेदर पाई इज गिवन टू यू और नॉट जैसे इस क्वेश्चन में पाई गिवन है 22.7 and for R we will take 3.5 by 2 for 2R it becomes 3.5 and for L it becomes 3.7 now this is the total area of this playing top और एक चीज और देखनी है we will also use this configuration centimeter square आप समझ गए होंगे why I am using this one got it or not yes Mohit sir I am audible yes सर मैं ये पूछ रहा था सर हेमिस्फीयर सर जब दो हेमिस्फीयर ऐड होंगे तो सर एक स्फीयर बनेगा ना बिल्कुल लेकिन सर जब हम उनके जैसे हेमिस्फीयर का TSA प्लस करते हैं तो सर 6πr² आ जाता है लेकिन हेमिस्फीयर का तो TSA 4πr² होता है दोबारा से बोलना क्या बोल रहे हो सर जब हम हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर का TSA ऐड करते हैं तो सर 6πr² आ जाता है ना नहीं बच्चे आपने वो नहीं देखा देखो एक हेमिस्फीयर आपका ये रहा ओके और एक हेमिस्फीयर आपका ये रहा जब आप इनको कंबाइन करोगे तो ये बीच वाला सरफेस तो खत्म हो गया ना तो ये πr² प्लस πr² क्या हो गया खत्म भी तो हो गया ना अच्छा ओके सर ओके तो ये सर इसको शायद आपने नोटिस नहीं किया यस सर चलिए और मैसेज लिख दिया करो ठीक है ओके सर चलिए किसी और का कोई डाउट रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यस प्रतीश जल्दी से yes carry on are you getting my voice everyone Yes, sir. okay Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Let us start with one more question, and this is very common question in your syllabus. And why I'm saying common question, check it. One cube is given to you. And on this cube, one hemisphere placed. ओके, तो इस तरह का बच्चे एक क्या होता है, हेमिस्फीयर प्लेस किया जाता है. And what he is asking, see this example 2 of your book, and he said one cube is given to you with each edge 5 centimeter. Okay, and on this cube a hemisphere is placed with the diameter 4.2. बच्चे इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है 4.2 है, मींस टू से उसका रेडियस कितना होगा 2.1. एंड एज आई शोन यू इन द फिगर, अब देखिए क्या होगा, इस पे आ जाए. तो व्हेन यू सी दैट, इस तरह का कुछ प्लेसमेंट है बच्चे. अब देखिए व्हेन टू सरफेस कंबाइंड ना, जैसे सेकंड फिगर में आप देखते हैं, तो ये एरिया खत्म हो जाता है. कर्व्ड सरफेस एरिया में से ये एरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज गिवन टू यू. बट इन अवर क्वेश्चंस वन मोर थिंग इज देयर, कि आपका जो ऊपर हेमिस्फीयर है वो इस क्यूब के टोटल सरफेस से थोड़ा सा छोटा है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we know that edge of the cube is A, which is equal to 5 centimeter, and radius of the hemisphere is R, which is equal to 2.1. ये 5 centimeter है और ये 2 क्या है 1 centimeter. Now what we can do, we will just start with this question. अब क्वेश्चन देखिए क्या है और हम उसको किस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्यूब. देखिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, आई विल फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 6 एजेस. जितने भी आपके पास एजेस हैं तो मैं उन सब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा, एंड विच इज इक्वल टू 6a². ओके, नाउ next thing we will find out, we will find the surface area of this hemisphere. ठीक, और इसका जो सरफेस एरिया होगा बच्चे वो क्या होगा, हेमिस्फीयर का 2πr². बच्चे बट वन थिंग कीप इन माइंड, अब क्या हुआ, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि व्हेन वी कंबाइंड दीज टू सरफेस, अब जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था, तो ये वाला जो ब्लैक डॉटेड लाइन के साथ आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस इस क्यूब में से कवर अप हो गया ना. तो व्हाट आई कैन डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये जो इतना एरिया बन रहा है ये वाला, यानी एरिया ऑफ द सर्कल, ये मैं माइनस कर दूंगा, विच इज नोन एज -πr². ओके, तो इससे आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, you will check that you will again get this area also. ये जो छोटा छोटा एरिया साइड में बच गया था ना, ये एरिया भी आपको कंप्लीट मिल गया. now this is the required formula for surface area of this question. और हम इसमें क्या करेंगे बच्चे, just we will simplify it, 6a² plus πr². फिल कीजिए, 6 5² 22/7 r, which is equal to 2.1 and 2.1. सॉल्व कर दीजिए
आई थिंक आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, इट बिकम्स 150.3 which is known as 13.86 and in the combined way we will get 163.86 centimeter square. This is the area of our question. Got it? और इफ ही सेड कि इसको पेंट करना है या कुछ और करना है तो हम उस तरह से आगे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। सर माइनस पाई आर स्क्वायर पे तो था बच्चे, मैंने इनको देखो कंबाइन कर दिया ना, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई रिट पाई आर स्क्वायर। ओके, उसी को मैंने यूटिलाइज कर लिया टू सॉल्व इट इन इजी। नाउ इस चीज को ही बिल्कुल आप देखिए बच्चे, इफ यू विल सी योर क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 of your 13.1 exercise and what is given there, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, फिर से एक बार चेक करवा रहा हूं, ठीक, and question number 4 is same way, and in that question he said the cubical block of 7 centimeter, ये कितना है बच्चे, 7 7 and 7, ठीक, surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere can have, find the surface area। अब देखिए क्या हुआ, अब ये हुआ बच्चे कि ये जो आपका ऊपर वाला क्या बनाया गया था, हमने हेमिस्फीयर बनाया था, इस हेमिस्फीयर को इतना कर दिया गया कि इट विल कवर अप दिस वन। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, यूनिट तो आएंगे जो भी आपके पास है। तो इफ दिस इज 7, this is 7, this is 7, now in this particular question you will see कि अब आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चे, इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ एज वी कैन राइट 7 एंड इंस्टेड ऑफ रेडियस वी कैन राइट 7/2। आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड है। यू विल चेक दैट कि आपके पास डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी 7 हो गया। सेम फार्मूला इज देयर, 6a square plus 2 pi r square minus pi r square, ultimately you will get 6r square plus pi r square and fill the values here। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा and try to find out the values। You will see 6 into 7 square plus 22/7 into 7/2 and 7/2। Got it? और आप इस आंसर को फाइंड आउट कर लें। गॉट इट? अब उसने कहा था कि ये कंप्लीट कवर कर रहा है उस क्यूब को, नॉट आउटसाइड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द डायमीटर। गॉट माय पॉइंट? तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास ये आंसर की क्या हो सकती है, वैल्यू डिफाइन की जा सकती है। नाउ कम ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर बुकलेट। आपने बच्चे मेडिकल कैप्सूल जरूर देखा होगा। ठीक, तो इफ यू हैव सीन दैट, तो यू विल फाइंड दैट it is a mixture of cylinder and 2 hemisphere। okay, and the same question is given to you in your booklet
he said we have a medical capsule like this. Okay, and in this medical capsule, this is equal to 14 mm. टोटल लेंथ कितनी है? 14 mm. And this is known as 5 mm. ओके, फिर से देख लीजिए, 14 mm and here is 5 mm. Okay, and what is given to me? The width of this capsule is 5 mm. And he is asking me to find out the area of the total surface area of this capsule. देखिए किस तरह का easy question है. Okay, for this, the radius of this hemisphere is 2.5 and this will also be a 2.5. तो बच्चे ये हो गया combined. जो बीच में cylindrical portion है, its height becomes 9 mm. Okay, now for this whole capsule you can say the radius of this is 2.5 mm and height is equal to 9 mm. And अब आप क्या देख सकते हैं बच्चे, if you see this particular question, the middle portion, this one will be a cylindrical portion, and cylindrical portion means curved surface area, and these two portions, this one and this one, बच्चे ये दो क्या हैं? हेमिस्फीयर हैं. कितने हैं? हेमिस्फीयर. और एक चीज और देखिए, व्हेन आई सी दिस होल फिगर, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी. इफ यू सी दिस होल फिगर, तो ये होल फिगर आपको इस तरह की दिखेगी. इसको छोड़ दीजिए. this and this. तो मेरे पास फार्मूला क्या होगा बच्चे? इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड बीच वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड वी नो दैट पहले हेमिस्फीयर का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. दूसरे वाले का भी क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन का क्या होगा? 2 पाई आर एच. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. और हमारे पास देखिए ये क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर and 2 pi rh. Take 2 pi r common and it is left with 2r plus h. चलिए जल्दी से आपको टास्क देता हूं. Who will solve this question and send me the answer? I will take the name of that candidate. Fill the values. सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यार. Yes, लक्ष्य. Yes, लक्ष्य ने एक वीडियो बना के दिखाई है. I will also show you something. Very good. Okay, many answers are coming on. Very good. And सभी इंटेलिजेंट हो गए. अभी इतने आंसर आ गए. कैन नॉट check who sent first. Okay,
अरहाम फर्स्ट, बट इसका इसलिए गलत है, इसने यूनिट्स नहीं लिखे साथ। ओके, वेरी गुड। बच्चे अब आप आई थिंक मेरी वीडियो पे भी फोकस करेंगे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, चेक इट। ये देखिए, आपने कहा ये हमारे पास सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक कोन है। ये आपकी एग्जांपल है। ओके, नाउ इफ यू सी, ये हमारा कोन के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। नाउ इफ यू सी दिस वन, ठीक, ये हमारे पास, चेक माय पॉइंट, तो ये कुछ कंबाइंड फिगर हैं बच्चे, जिनको हम इस तरह से दिखाते हैं। चेक इट, से क्यूबॉइड, एंड ऑन दैट क्यूबॉइड अ लिटिल हेमिस्फीयर इज देयर, जो पूरा कवर्ड अप करता है। और देखिए इसमें यूनिक चीज क्या है कि ये वाला जो एरिया है, दिस वन, ये बाकी रह जाता है। ओके, नाउ इफ यू सी दिस वन, जिसको आपने अभी कहा था प्लेइंग लट्टू, ठीक, कॉनिकल, एंड नेक्स्ट अपर पोर्शन इज हेमिस्फीयर। ओके, एंड दिस वन, जो आपको बिल्कुल ये दिवाली वाला बिल्कुल ठीक है, रॉकेट लगेगा, ठीक, नेचुरल लोअर पोर्शन, दिस लोअर पोर्शन इज सिलेंडर एंड दिस पोर्शन इज कॉनिकल, ठीक। और आप देखेंगे ये क्वेश्चन किसके लिए बनाया गया है, एग्जाम्पल 3 के लिए ये मॉडल बनाया गया है। ओके, एंड बिल्कुल सेम बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, सिलेंडर के ऊपर क्या बनाया गया, एक हेमिस्फीयर बनाया गया। ओके, नाउ कैन यू गेस किस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को यूज किया गया होगा। चलिए देखते हैं, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। तो ये जब ऑफलाइन करते हैं तो वी विल आल्सो शो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now check it. When you move on to questions like this, so one question comes in your mind, that is question number 9. Exercise का question ही कर रहा हूं मुझे। तो see this question. Okay, he said a wooden article of this kind, यहां पे भी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है बच्चे, और यहां पे भी क्या है, हेमिस्फेरिकल क्या है, डिप्रेशन है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere each end of a solid cylinder. ये सिलेंडर सॉलिड है और उसमें से on this side एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को क्या किया गया बच्चे, आउट कर दिया गया, यानी स्कूप आउट कर दिया गया। जैसे आप आइसक्रीम निकाल लेते हो एक, ठीक, वन स्कूप, एंड हेयर वन स्कूप फ्रॉम द अनदर साइड, बिकॉज ये सिलेंडर क्या था, सॉलिड था। Now he said, if the height of this cylinder is 10 centimeter and its base is 3.5,
जो बेस रेडियस है बच्चे वो कितना दिया गया, 3.5। ही सेड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। तो हमने इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ वी विल मूव ऑन टू दिस पार्ट, ओके। तो चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास क्या होगा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं बच्चे, चेक इट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, it will be included. The curved surface area of this hemisphere, it will be included. तो you know that upper का क्या होता है 2 pi r square and lower portion का भी क्या होता है 2 pi r square and what is r वो हमने already पता कर लिया. Now the next thing which comes is the curved surface area of the cylinder, and for curved surface area we will use the formula 2 pi rh. ओके मेरा ये मानना है बच्चे कि आप ना पहले फार्मूला कंबाइन करो, इट बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. नाउ टेक 2 पाई आर कॉमन, इट बिकम्स 2 आर प्लस एच. एंड जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए इसका, 2 पाई 22 by 7 into r 3.5, 2r 7 and h is equal to 17. Okay, add just to inform you कि आपके पास ये वाला सरफेस एरिया प्लस दिस ये वाला सरफेस एरिया आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन बच्चे इजी हो जाएगी. ठीक, व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आपकी ये कैलकुलेशन क्या बन जाएगी, लिटिल बिट क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी. अब देखिए आई गॉट 5 आंसर. वन इज 374 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज 473 सेंटीमीटर एंड कुछ और भी आ रहे हैं, बट आई थिंक हाँ जब हम जाएंगे तो आंसर कुछ और ही आएगा. एक 474 भी आ गया, वेरी गुड. एक 3740 भी आ गया, ये तो कमाल ही है. देखिए 0.5 को लिखिए 5/10, सॉल्व कीजिए 1/2, 1/2 को इसके साथ कैंसिल कीजिए, तो यू विल सिंपली गेट 22 into 17. तो इट्स एग्जैक्ट आंसर इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, फॉर्मेट में लेंगे. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन तो और भी हैं. एंड ही सेड अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन. देखिए एक आपके पास सिलेंडर है एंड दैट सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन. ये हम एक टेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, तो दिस कोन. ठीक, तो ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, फॉर्मेशन में सकती है. अच्छा, किसी बच्चे ने ना ये मेरे से पूछा कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. एक चीज देखिए, व्हेन वी डील विद द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में इस दो बच्चे ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. बट जब आप हेमिस्फेरिकल स्कूप करोगे ना तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, नीचे की तरफ एरिया और बन जाता है. देखो पहले तो ऊपर सर्कल का था, तो ये सर्कल तो आउट हो जाएगा जब आप इसको बाहर करोगे, तो अंदर की तरफ एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, तो इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया. जब आप किसी के ऊपर किसी के अंदर से स्कूप निकालते हो ना, तो इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ओके, नॉट डिक्रीज द सरफेस एरिया. हाँ जी, नाउ कम ऑन टू दिस वन. ही सेड इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, देखो हाइट कितनी दी हुई है 2.1 एंड सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर कितना दिया हुआ है 4, which can be written as 2. ओके, नाउ
इफ दिस इज 2 तो आपको ये भी पता है कि ये भी क्या होगा, 2 होगा। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। जब आप नेक्स्ट वन में जा रहे हैं बच्चे, तो यू विल सी दैट एक इसने और भी दिया हुआ है, द स्लांट हाइट इसकी। ओके, तो व्हाट वी कैन से 2.8 and 2.8, and here is 2. Okay, and here is also 2. So what we can do in this question, we will just find out this one. Okay, तो अब आप इस चीज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। He said हमने इस पे एक कैनवस देना है, एंड फॉर कैनवस we will find the surface area of this particular task. Now surface area क्या होगा बच्चे, surface area of the cylindrical portion which is known as 2 pi RH. surface नहीं, curved surface area. Okay, कौन सा, curved surface area of this cylindrical portion. Now come on to this one. अब आप इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, curved surface area of the cylinder. That is equal to pi r l. Okay, so here is 2 pi r h plus pi r l, and everything is given to me. Before I start, I will write it pi r 2 plus h. So pi is equal to 22/7, r is equal to 2. अब एक चीज आपको नोटिस करनी है बच्चे, 2h which is equal to 4.2 plus l 2.8. जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चे। व्हेन यू सॉल्व इट तो यू विल फाइंड इट इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ही सेड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर ये मीटर में था सारी फिगर तो मैं सेंटीमीटर ले गया, मीटर स्क्वायर। ही सेड फॉर 1 मीटर स्क्वायर you have to spend ₹500, and we would like to find out the cost, and for cost factor what we can say 44 is equal to 500, which will be solved as, multiply कर दीजिए, in this rupees formation, and this is the way we can solve the surface area of the combined figures. Okay, हाँ जी।